keeps us on our toes as a team of trainers. But before we go into this amazing session, I would like to give a small introduction. I know you all know us very well, but still, I think a little has to be said about Rapid Mile. Now, Rapid Mile started many, many years ago. Earlier, it was called Golden Inspirations. And at that time, about 18 years ago, they were involved with the Law of Attraction workshops, trainers' trainings, and the Silver Ultra Mind system. But it was about 1 year ago when all of us had to stay home because of the lockdowns that Rapid Mile was resurrected. And over this past 1 year, we have brought to you numerous workshops in various different fields. And we are delighted to say that, we are going from strength to strength as our team grows, as we get the opportunity to serve all of you. Now, a quick word about our team. It is headed by Mr. Shaz Kamar, the managing director. He's a law of attraction trainer and trainer's trainer also. Alongside, we have Sri Balram Talreja. We all know him. He hardly needs an introduction. He's been serving people for the last 30 years, and he is a yoga guru, an EFT expert, a Ho'oponopono expert, a law of attraction expert. We also have Ms. Niharika Chaturvedi, who is a Jack Canfield certified success principles teacher and trainer. She's also a law of attraction trainer, an author, and by passion, a wonderful singer. I have heard her, she is terrific. We also have a new joinee. You all know him because he's taken a session here, Mr. Ongir Bhattacharya, who brings with him years of experience as a digital marketing person. And very soon he'll be conducting a workshop for all of us to learn and grow from. Now, I keep myself one step before I actually introduce the speaker for tonight. I'm Dr. Anila. I'm a medical doctor, a law of attraction trainer and trainer's trainer. But today we are all assembled here for a thrilling and exciting subject, and that is the master keys to success, given by none other than Mr. Napoleon Hill. Today's topic is going to be presented by one of the most amazing trainers I have ever learned from, Mr. Sanjeev Mishra. He is our own resident money magnet. And so I want to hand it over to him without further ado. Let's unmute ourselves and give him a round of applause. Thank you. Over to you, Sanjeev. Thank you, all of you. तो आज हम लोग बात करेंगे मास्टर कीज टू सक्सेस विच वेर गिवन बाय नेपोलियन हिल. So how many of you actually know about Napoleon Hill? Shaz knows and two people have raised hand. Good. So Napoleon Hill, Andrew Carnegie was a very successful businessman during the 18th and 19th century in America. And उनके बारे में एक किस्सा फेमस है कि जब he started earning तो money, he was so successful and so quickly he made so much of money that American government established an investigation to look into it, कि how he is doing so. And he gave that one logic to them also, which we will be discussing today. And later on, Napoleon Hill was somehow attached to him and he learned from him all the success principles. Andrew Carnegie advised him कि आप और लोगों से बात कीजिए, और सबके इंटरव्यूज के बाद नेपोलियन हिल ने ये सक्सेस प्रिंसिपल्स निकाले. जो सक्सेसफुल लोग थे, जिन्होंने क्या किया था, उसको अंडरस्टैंड करते हुए नेपोलियन हिल हिमसेल्फ एक बहुत बड़े बेस्ट सेलर ऑथर बने और ही वाज वेरी गुड सक्सेस प्रिंसिपल टीचर. So my question to you is, कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हैं? राइट वाई इन चैट बॉक्स. और कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? So only commitment मुझे आपसे चाहिए, बी
interactive. If you are actually looking for success, these principles can bring magic to your life. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनसे बहुत पहले से जानता था. यस, मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी, बट रिसेंटली जब मैंने नेपोलियन हिल को स्टडी किया और मैंने स्टेप बाय स्टेप उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, सो आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द चेंज. So what you should expect from this session? So you will learn keys to success as given by Napoleon Hill, and also because मेरी स्टोरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना हो नहीं पाती, बिकॉज अगर मैं देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जो कुछ भी मुझे मिला मैं उसको समझ पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो मेरी बेस लाइफ का जो बेसिक है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. तो जब मैं इनको पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ सक्सेस, ये सब हैंड टू हैंड चलता है. मतलब एक ही बात है, अलग शब्दों में कही. तो ये दो चीजें आज आपको समझ में आएंगी. यस, नोट्स ले सकते हैं आप, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे अपने लिए इंप्लीमेंट करने के लिए लगे, और जो भी मैं इंटरेक्टिव कुछ कहूं वो लिखिए, क्योंकि राइट नाउ आपका जो जोन होगा, जो समझ के जो एनर्जी होगी, वहां से जो चीज निकलेगी, अगर उसको लेटर ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आई कांट प्रॉमिस कि वो एनर्जी मेंटेन होगी. So before I move ahead, yes, I know you all people mostly know me, but then also if some of you doesn't know me, this is Sanjeev Mishra. मैंने 15 साल सक्सेसफुली गवर्नमेंट जॉब की है. मैं सिविल इंजीनियर था, और 3-4 साल पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सही से वाकिफ हुआ, क्योंकि उसके पहले से मैं सीक्रेट के थ्रू जानता था उसको, कुछ चीजें इंप्लीमेंट करता था और काफी चीजें उसके थ्रू हासिल भी की थी. बट 2017 में शाज की एक वर्कशॉप अटेंड करने को मुझे मिली, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये वे ऑफ लाइफ है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ गाड़ी, मोबाइल, फिजिकल मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेने की चीज नहीं है. इट्स अबाउट वे ऑफ लाइफ. और इन्हीं वर्कशॉप्स के थ्रू मेरा विजन खुला, और मुझे ये समझ में आया कि आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर फ्रीडम. मनी तो मेरे को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, आई एम लुकिंग फॉर फ्रीडम. तो उस फ्रीडम के लिए आई वांटेड कि मेरे को जो फ्रीडम चाहिए तो मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप रहे, ताकि मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज कर सकूं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकूं, अपने चॉइस के काम कर सकूं. तो वहां से मेरा ड्रीम जगह फाइनेंशियल फ्रीडम का, और मैंने उसके ऊपर काफी काम किया. आज हम लोग उस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे. और मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम या फ्रीडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं 9 to 5 जो जॉब कर रहा था उससे बाहर आऊं, ताकि वो चीजें कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं. तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स मिले, और उसके थ्रू मैंने एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तैयार किया, जिसमें काफी टाइम फ्रीडम. एंड इसी बीच मई में शाज से मेरी बात होती रहती थी, माय मेंटर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो ही प्रपोज्ड मी कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज ए ट्रेनर, क्योंकि मैंने इनका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी किया था. एंड मुझे भी लगा यस, आई लव टू टॉक टू पीपल एंड आई लव टू हेल्प पीपल. सो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और इसलिए हम आज यहाँ सामने बैठे हैं. सो आज की जो हम बात करेंगे लॉ ऑफ सक्सेस की, उसके पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. हम हैं कौन, ये समझना बहुत जरूरी है. उसके पहले जैसे मुझे डॉक्टर अनियाल दिख रही है, डॉक्टर शाज, सॉरी मिस्टर शाज दिख रहे हैं, भारत जी दिख रहे हैं, अमित दिख रहे हैं. क्या ये अमित तलरेजा वही है जो मुझे दिख रहे हैं, टी शर्ट, हेयर, बियर्ड, या अमृत तलरेजा कुछ और भी है, या सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकल अपीयरेंस है जो मुझे दिख रही है? तो व्हाट आप कौन है, मैं कौन है, हम क्या चीज से मिलके बने हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करें. सो वी आर एग्जिस्टिंग इन 4 डायमेंशंस. इमोशनल डायमेंशन, जो हमारे इमोशंस होते हैं अंदर के. मेंटल, यानी जो हमारा ब्रेन है, जो थॉट प्रोसेस है हमारी. स्पिरिचुअल, जो हमारा सोर्स ऑफ क्रिएशन से कनेक्शन है, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बताता है, जो हमारे अंदर लाइफ है एक्चुअली. एंड जो चौथी डायमेंशन है वो फिजिकल, जो हमको दिखती है, जो लोगों को दिखती है,
और जिस पे हम सारा काम करते हैं एक्चुअली। लेकिन लकीली हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन रैपिड माइल से connected हैं। वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग टू वर्क ऑन ऑल दीज 4 डायमेंशंस, इजंट इट? हम लोग, बहुत सारे लोग सुबह के सेशंस में आते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, डिक्लेरेशंस करते हैं। सो वी ऑल आर वर्किंग ऑन दीज प्लेन्स। चौथा प्लेन के बारे में आज हम बात करेंगे कि उस फोर्थ प्लेन में एक्चुअली फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमें क्या करना है टू अचीव द सक्सेस। सो एज आई सेड कि दोनों चीजें हम मुझे ऐसी लगी कि मिली हुई हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सो आप में से कौन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट यू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एनीबडी? राइट इन चैट बॉक्स और स्पीक। कोई बताना चाहेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू? I think Yes, simply thought creates reality. Yes, Nanavati ji, yes sir. Yeah, law of attraction is I have an intent and I work on it, and the universe shows me the way out, and I get the thing what I want. Good. And what are the 3 principles of law of attraction? Anybody remember? Anila ma'am की क्लास की होगी। yes, Sanjeev, can I share? Yes sir, please. Like attracts like. What you hold in your mind, you hold in your hands. What you focus, it grows. Good. Thought become things. What you focus on grows, and like become like. And Abhishek ने Like and attracts उन like. लोगों ने लिखा कि ask, believe and receive. हमको यहाँ law of attraction, when we learn law of attraction, ask कि क्या करना है, what is believe, how to receive, how things, thought become things, how to focus on things we want, how like attracts like, ये हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सक्सेस में क्या इनसे रिलेशन बनता है। सो देयर आर 13 कीज जो नेपोलियन हिल ने बताई हैं अपनी सक्सेस की। ही हैज नेम्ड एज मास्टर कीज। सो इसकी स्टोरी हुई कि ही वेंट टू, आई थिंक somebody is on mute. He went to Carnegie and asked कि what is that basic thing जिससे आप डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों से। तो he told that एक ऐसी पावर है जो सबके पास है बट उसको लोग यूटिलाइज नहीं करते। कोई बता सकता है वो कौन सी पावर है? डिजायर एंड स्पेशली ह्यूमन बींग्स के पास होता है Subconscious mind. करेक्ट। तो ही टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग, माइंड, थिंकिंग। So he told कि if people can take possession of their mind and direct it to attain a specific goal, then they can easily achieve the success. So the first and foremost thing is taking the possession of your mind. For that, उसके steps क्या है सक्सेस के? So नेपोलियन हिल ने इसके लिए एक कोट दिया था, आप सबने सुना होगा, whatever your mind can conceive and believe. Who can complete this? Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. You can achieve. तो इस पावर की बात की कार्नेगी ने नेपोलियन से। And he also said कि जो लोग इसका पोजीशन लेते हैं उनको 6 सक्सेस या ब्लेसिंग्स मिलती है। They have sound health, they have always positive mental attitude, they are in possession of the materialistic thing they want, they do the job of their choice,
they have peace of mind, and they are free from worry and fear. These are the 6 blessings which anybody achieves if he or she decides to take possession of his mind. And on the contrary, when people don't take possession of mind, they receive penalties. Can anybody guess what are those penalties? Fear, worry, Grief, frustration, guilt, grief, guilt, guilt, worry, doubt, resentment, resentment, doubt, indecisiveness. So first you have irritation. to, so first thing he has advised that decide to take possession of your mind. And then first thing is write down what is your desire. So what is your definition of success? What is success meant for you? What is success for Abhishek Dhawan? What is success for Sudhanshu ji? So everybody is carrying a different view on success. So what is that success means to you? First of all, decide that. अगर हम law of attraction की बात करें, तो first principle is ask, and we always tell, be very, very clear what you are asking. When I tell people कितना पैसा चाहिए, they tell 50 लाख, 1 करोड़, and I tell them कि इसीलिए नहीं मिलेगा, because Sanjeev Mishra was looking for freedom. So he should ask for freedom, not for money. अभी हम ऐसे प्रोग्राम हो गए कि मनी होगा तो सब हो जाएगा, तो मनी मांग लो, but you are not excited for that. You are excited for travel. So he said कि first of all, to take a pen and write what is success for you. What is that major desire? क्या है वो जो मिल जाए? क्या है जैसा मैं बन जाऊं? क्या है जो हो जाए जिससे मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूं? आपके लिए वो क्या चीज है? फर्स्ट राइट इट डाउन देयर, डिसाइड इट. दिस इज योर डेफिनेट पर्पस, द फर्स्ट स्टेप. एंड आफ्टर राइटिंग दिस, एक क्लियर स्टेटमेंट लिखना है, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव टू रिसीव दिस. हम क्या देने वाले, व्हाट विल बी आवर सर्विस, हम क्या काम ऐसा करेंगे जिसके थ्रू हमको ये मिलेगा. तो फिगर दैट आउट and write a clear statement. I'll do this to achieve this. So this is covered under first key, that is definiteness of purpose. Second thing he talks about, see Amrit, आपने एग्जांपल पूछा है. फॉर मी, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दे पाऊंगा, तो मैं एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं स्टॉक में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग और उसके वेंचर्स. तो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव, मेरे पास एक टाइम के बाद मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए आई विल हैव टू रेज कैपिटल. तो व्हाट आई एम गिविंग टू पीपल इज मोर बेनिफिट्स टू देम. उनको बेनिफिट्स दे रहा हूं, मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग का पार्टनर बना रहा हूं, जहां काम मैं कर रहा हूं और उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा हूं. ये एक मेरी गिविंग है. ये आगे और चीजों से ये कवर अप होता जाएगा. यस, एडिंग वैल्यू. जैसे कि मैं एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं लोगों को, माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं जो मुझे आता है. तो वो मेरी सर्विस है. कोई भी सर्विस, मैं डॉक्टर हूं तो मैं लोगों को ट्रीट करूंगा, ये मेरी सर्विस है. तो वो क्या स्किल सेट है, वो आपका जॉब है या प्रोफेशन है या कोई अलग स्किल सेट है जिस पे आप काम करना चाहते हैं अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को अचीव करने के लिए. देन सेकंड कम्स, ही सेज
मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। कितने लोग ने मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का नाम सुना है? मैंने अभी रिसेंटली सुना था और मुझे लगा ये नए जनरेशन की चीज है। जब इनको मैंने पढ़ा और समझा तो ये मालूम चला कि लोग अनकॉन्शियसली इसको ये नाम देके नहीं बट इसको फॉलो करते रहे। तो मास्टरमाइंड में क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास्टरमाइंड? वी आर ए ग्रुप ऑफ पीपल, यू आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर trying to achieve a similar kind of goal with a perfect harmony। मतलब उनके विचारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, they are in perfect alignment for that goal at least, and they work together and they brainstorm। तो क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अगर हम इस तरीके का मास्टरमाइंड, पहले तो बताएं मास्टरमाइंड समझ में आया? हम एक ग्रुप बनाते हैं लोगों का, जो लोग उस तरीके की सक्सेस को चेज कर रहे हैं अपनी अपनी डेफिनेशंस के हिसाब से। देन वी कम टुगेदर एंड डिस्कस, ब्रेनस्टॉर्म। यस अमृत, लाइक माइंडेड टू ट्राई टुगेदर। यही चीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बताता है, एसोसिएशन। आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक जैसे लोग एक साथ इकट्ठे हों, या लाइक वी डू इट एवरी मॉर्निंग। उसके अलावा हम लोग अमृत स्टॉक ट्रेडिंग में हम लोग वीकली करते हैं एक सेशन। तो बहुत सारे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, फोर्ड का एग्जांपल दिया है। फोर्ड को कितने लोग जानते हैं? सो ही वाज शाई एंड हेजिटेंट टू डिस्कस ऑन हिज आइडियाज। और उसके दिमाग में आइडिया था बुलक कार्ट के बिना, मतलब बिना किसी हॉर्स के गाड़ी चलाई जा सकती है। तो उसकी उनकी वाइफ उनकी मास्टरमाइंड बनी और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और फिर हेनरी फोर्ड और ऐसे लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने वो हासिल किया जो शायद अकेले उनसे नहीं होता। तो फाइंड योर ट्राइब, जैसा अमृत ने लिखा, और उनके साथ क्लब करिए। इनिशियली मैं इसको समझता था, मास्टरमाइंड के नाम से नहीं समझता था, बट यस फोर्ड इज अ कार कंपनी, बट मैं इसको समझता था टीम बना के काम करना। मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था। अब मुझे और क्लियरिटी आ गई कि नहीं, मुझे अपने जैसे जो लोग उस तरीके की सक्सेस को चेज कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करना है। उनके साथ हमको वीक में, 15 दिन में, आजकल बहुत सारी जगह भी हो रहा है, दे क्रिएट ए मास्टरमाइंड ग्रुप, दे कम टुगेदर, दे डिस्कस एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। और दूसरों की लर्निंग से लोग सीखते हैं। यहाँ बेसिकली हम दूसरे की नॉलेज बोरो कर लेते हैं और उसका फायदा हमको मिल जाता है। अंडरस्टैंड? इसलिए उन्होंने इस पर इतना एम्फेसाइज किया है और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। दूसरों का नॉलेज, दूसरों का एक्सपीरियंस हमको काम में आ जाता है। इवन दूसरों के कैपिटल भी आ जाते हैं काम में व्हेन दे आर ओपन टू योर आइडिया। और किसी को लगता है यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और यू टेल कि थोड़ा आप पीछे चल रहे हो कि बिकॉज यूर लैक ऑफ फंड। ऐसा भी होता है कि पीपल बिकम पार्टनर्स फ्रॉम देयर। सो ही हैज एम्फसाइज्ड ऑन मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। एज आई टोल्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमारे लाइक अट्रैक्ट लाइक एन एसोसिएशन जिसमें हम स्ट्रेस अपॉन करते हैं, जिसके लिए हम हर हफ्ते यहां मिलते हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल, इसको भी अनजाने में हम लोग ऑफ किए हुए थे, अब इसका वैल्यू समझ में आ गई। पहले मैं इसको दूसरे ढंग से समझता था, एंड उस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग एक्स्ट्रा माइल। सो यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू अचीव, and now you have also decided that what service you are going to do. You have formed a mastermind, so you are continuously working on ideas and strategies. Then comes when actually you have to deliver the service. So he says render more service than people expect from you in return of whatever you are charging. और यहां पे मुझे लगता है कि कंफ्लिक्ट है। पहले लोग अपना चार्ज फिक्स करना चाहते हैं, बट जब मैंने इसको सुना और मैंने इसके एग्जांपल्स ढूंढने शुरू किए, कितने लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट फ्री में यूज किया है 10 साल तक? इससे ज्यादा भी।
एंड नाउ दे आर टेकिंग ए सब्सक्रिप्शन फी। कितने साल तक उन्होंने गिविंग सर्विस अपनी ऑन रखी और ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको सर्विस में कोई कमी की। और जब पूरा वर्ल्ड उनके नेटवर्क में आ गया, एक स्मॉल मंथली सब्सक्रिप्शन से साथ उन्होंने शुरू कर। तो पहले अपना नेटवर्क बनाया उन्होंने बड़ा सा, उनको इतनी सर्विस दी कि वो और कहीं जाने लायक नहीं रहे, और फिर एक छोटा सा चार्ज ले लिया। लोग खुशी खुशी दे रहे। कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट ने बदमाशी की, पहले हमको आदत लगा दी, अब बिगाड़ रहा है। दूसरी, क्योंकि उनके पास चॉइस भी नहीं अदरवाइज देखा जाए। तो पीपल आर डूइंग दिस जो सक्सेसफुल है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी में विद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, QQMA नाम दिया है नेपोलियन के साथ, वी हैव टू रेंडर सर्विस विच इज एक्स्ट्रा माइल। तो एक्स्ट्रा माइल जाने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? क्या कोई बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से, या देख के, या सोच के? क्या लगता है एक्स्ट्रा माइल अगर हम जाएंगे, जो कि बहुत सुनने में इनिशियली मुझे कष्टप्रदायक लगा था कि मैं वो सर्विस कम पैसे में दूं जिसके लिए एक्चुअली मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। So anybody would like to come up and share कि एक्स्ट्रा माइल जाने से what can be the advantage? Yes, you become expert. बहुत बढ़िया। You become expert. आप invincible हो You जाते हो। create loyal customers also. You create loyal customers, who You more create your stickiness with your demand. customers. Yes, more stickiness too. और भी आंसर आ रहे हैं। You create your demand and you become indispensable. Yes, indispensable हो जाते हैं। और आप अपने सर्विस को जब इस तरीके से देते हैं तो और बेटर करने के उसमें आप, जैसे सुरेंद्र सर ने लिखा, बहुत एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। यू क्रिएट एन एज, इसीलिए इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। Sanjeev bhai, can I share with my experience? बिल्कुल सर। We win the heart of the customers. हम उनके दिलों पर राज करना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहता है? गिविंग इज रिसीव। सो अगेन लॉ ऑफ सक्सेस वही बात करता है जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते आए। अगर आप जॉब में हैं और आप इतना सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो एक दिन आप निगोशिएट कर सकते हैं, आई वांट दिस और आई एम लीविंग। मैंने ये महसूस किया कि मैं फॉर्चुनेटली अपनी जॉब में ऐसा करता था। आई यूज्ड टू गिव 100% देयर, और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मुझे ओनरशिप की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत पड़ गई, चार्ज लेने। दैट्स अनदर स्टोरी। अब मेरा एक वेंचर है हेल्दीफाई सॉल्यूशंस, माय वाइफ इज डाइट एंड न्यूट्रिशन, जहां पे हम डाइट एंड न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं, और इंस्टीट्यूट के थ्रू हम डाइटिशियंस को और उनको एजुकेट कर रहे हैं, एक्सपर्टाइज करने। तो हुएवर कम्स टू डाइट एंड न्यूट्रिशन हमारे क्लिनिक में, उसकी एक्सपेक्टेशन मोस्टली 80% लोग की सिर्फ ये होती है कि मेरा वेट 10 किलो कम हो जाए। बट हमारी वर्किंग ये है कि वी अंडरस्टैंड हिज और हर होल प्रॉब्लम, एंड 60-70% लोगों का लाइफस्टाइल डिजीज साथ में एज ए बोनस क्योर करते हैं। मतलब उतना पेन लेते हैं। वेट लॉस कैन बी ए लिटिल लेस एफर्ट थिंग, बट उसके साथ साथ उसकी पूरी प्रॉब्लम्स को समझ के और उसको भी साथ साथ क्योर कर देना। उसको अपेरेंटली सिर्फ एक चीज दिखी, बट जब वो 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट कराता है तो वो अरे वाह, दिस इज एन एडिशनल बोनस जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पॉसिबल भी है। तो दिस वी हैव बीन डूइंग विदाउट नोइंग कि ऐसा करना चाहिए, बाय जस्ट नेचर, कि ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। अब उसकी मुझे वैल्यू समझ में आई कि कैसे उसकी वजह से हमारी वाइफ शीनू की पॉपुलैरिटी बढ़ी। अगर हम वालों को अपनी बात करें, रैपिड माइल को आप देख लीजिए, द मेन थिंग इज गिविंग, एंड समटाइम्स ऐसा होता होगा कि वो अनएक्सपेक्टेड लगता होगा आपको कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था।
दिस इज समथिंग विच आई नेवर एक्सपेक्टेड। तो इसी प्रिंसिपल पे ये कंपनी चल रही है। आई डोंट नो शाहज के दिमाग में ये चीज थी या वो बाय नेचर ऐसा कर रहे हैं, बट इट इज अंडर द लॉ ऑफ सक्सेस। दिस फॉल्स अंडर द लॉ ऑफ सक्सेस। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइड फेथ। सो व्हाट इज दिस अप्लाइड फेथ? जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आस्क एंड देन सेकंड थिंग इज believe. So when you have decided you want this success and you will do this for that and you are going extra mile and you have created a mastermind, then अब एक चीज रह जाती है, उस पे पूरा भरोसा करना। अब बिलीव्स अंदर है, हमें पता भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। आजकल ऐसा जमाना है, पॉजिटिविटी की हर तरफ बात हो रही है। अगर आप किसी से रूटीन में बात करेंगे तो ही विल टेल कि नहीं वो पॉजिटिव है सब कुछ, लेकिन वो अंदर कोई एक ऐसा बिलीफ तो नहीं लेके बैठा हुआ है। तो फिजिकल प्लेन में ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम ठीक हो जाए, वो प्रिंसिपल इन्होंने बताया। बिलीफ आते कैसे, कोई भी बिलीफ डेवलप कैसे होता है, चाहे हमको पता हो या नहीं पता हो? एक्सपीरियंसेस से। मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। एक बच्चा है छोटा सा, उसको आप उछालते हो, किलकारी मारता है, आपकी गोदी में आता है और वो चाहता है कि दोबारा आप उछालो उसको और मजा चाहिए उसको। लेकिन अगर वो बच्चा बाई चांस गिर जाए, दोबारा चाहेगा? मुझे हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि जो बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, मेरे पास सक्सेस भी है और फेलियर भी है, तो फेलियर वाला बिलीफ सिस्टम क्यों डेवलप हो जाता है, सक्सेस वाला क्यों नहीं होता? मुझे माने सबको, इसके पीछे क्या रीजन है? तो एक बुक पढ़ते समय मुझे एक ऐसी इंसाइट मिली, हम सब लोग डिजाइन्ड है, कोई भी क्रिएचर पहले सर्वाइवल के लिए, कि पहले जी लें, फिर इंजॉयमेंट और ग्रोथ और फन तो अगली पार्ट है। तो जब भी हमें चोट लग जाती है, उसका इंपैक्ट हमारे अंदर ज्यादा हो जाता है, इसलिए फेलियर्स ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, उनके वजह से हमारे नए बिलीफ डेवलप हो जाते हैं। और हम जब निगेटिव इस तरीके के कोई भी बिलीफ ले लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्लोर। आप उस चीज के लिए क्लोज हो जाते हो, ये करना ही नहीं। और ये मैंने बहुत अच्छे से देखा स्टॉक मार्केट में, 90% लोग क्लोज हो चुके हैं उसके बारे में, जो भी रीजन हो उनका, क्योंकि ऐसा बिलीफ आ गया। अब वो बच्चा अगर उछल के उसको आपने कैच कर लिया, वो खुश है, वो कहेगा और एक्सप्लोर कराओ मुझे, और बताओ यहाँ क्या मिल सकता है, व्हाट नेक्स्ट यार, कुछ और बताओ मुझे, ऐड ऑन करो। अब फिजिकल प्लेन में क्या किया जाए कि वो जो हमारे बिलीफ्स है वो ठीक होने शुरू हो। बिलीफ आया था एक्सपीरियंस से, नए एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे। नए एक्सपीरियंस कैसे आएंगे? जब आप काम करोगे, जब आप क्लोज ही कर दोगे तो नया एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो वो करेज इकट्ठा करके वो काम दोबारा करना, कोई छोटी फेलियर हो सकती है, फिर दोबारा करना, क्योंकि फेथ है ना, वो सक्सेस है, वो सर्विस मुझे पता है, मैंने मास्टरमाइंड बना रखा है, मैं एक्स्ट्रा माइल जा रहा हूं, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा हूँ। उससे जब हमारे को रिजल्ट्स फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, देन फिर हम एक्सप्लोर करने लगेंगे, अब व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करें और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो बिलीफ सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने अप्लाइड फेथ की बात की, जैसा मैं समझ में आया उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हुए। तो एक कोट है, बिलीव एंड इट इज रिसीव्ड। आजकल हम लोग अर्ल नाइटिंगेल ऑडियो डेली सुन रहे हैं, उसमें सेंटेंस हमको बार बार सुनने को मिलता है। तो यही 4-5 प्रिंसिपल्स मैं डिटेल में जाना चाहता था। इसके अलावा देन वी विल प्रोसीड प्लीजिंग पर्सनालिटी। ही हैज गिवन दिस आल्सो। अब प्लीजिंग पर्सनालिटी आपके लिए क्या समझ में आता है? कोई बता सकता है प्लीजिंग पर्सनालिटी से क्या समझ में आता है? प्लीजिंग पर्सनालिटी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेनर की बात का जवाब दें। हाँ, वेरी गुड जयश्री, थैंक यू सो मच। कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, सरकास्टिक बातें नहीं करनी चाहिए, फिर टंग को भी ठीक रखना है।
लोग आपसे मिलकर खुश होने चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है, बट उन्होंने इसको स्ट्रेस अपॉन किया कि ये जरूरी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको क्या सिखाता है? आप अपना चार्ज ले सकते हो, पूरी दुनिया का नहीं ले सकते। तो यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। जब हम कोई काम में है, बिजनेस में है, तो हमें कैसे भी रिएक्शन आ सकते हैं। हमें अपने को ठीक रखना है और उस सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करना है। ये भी पार्ट है प्लीजिंग पर्सनैलिटी का। तो ये लर्न बीइंग हम्बल, जैसे नानावती सर ने लिखा। तो ही emphasizes कि ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए। देन यू शुड हैव सेल्फ डिसिप्लिन। ये बचपन से सीखते आए हैं, अप्लाई कितने कर पा रहे हैं आई डोंट नो, बट मालूम है डिसिप्लिन। व्हेन हैव डिसाइडेड तो कीप ए डिसिप्लिन। फिजिकल, आपको क्या काम करने, गोल सेटिंग, आपका ऑफिस का टाइम है तो आपका क्या रूटीन होना चाहिए, आप हेल्थ को टाइम दे रहे हो कि नहीं, आप मेंटल हेल्थ को टाइम दे रहे हो कि नहीं, और उसको आपकी ईटिंग हैबिट में डिसिप्लिन है कि नहीं। ये सारी चीजें मिलकर सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं। और जैसा अपन ने प्लीजिंग पर्सनालिटी में डिस्कस किया कि मतलब आपकी टंग को भी डिसिप्लिन होना चाहिए। आप किसी पे फायर बैक तो नहीं करते हो। तो दीज आर सम की पॉइंट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको पता है, ही नोज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है। कोई बताना चाहेगा व्हाट डज इट मीन बाय पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड? To turn, look at any situation and make it a positive situation. चाहे whatever is happening, you try to find the positive in every situation. गुड। Even if it's a negative thing, there is an equal opportunity of positive. The way of looking at it positive. यस, एंड टू ऐड ऑन, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो आप वो इरिटेशन के साथ दे रहे हैं या खुशी के साथ दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, टर्निंग बैड लेमन्स इनटू लेमनेड, वो भी आएगा सर नेक्स्ट। तो इसके लिए उन्होंने एडवाइस किया है दैट यू शुड हैव अ सिस्टम, a fixed system to train your mind for that. See, long back, 100 years back, he advised this. जो अपन में से काफी लोग कर रहे हैं, हम लोग वीकली यहाँ मिल रहे हैं टू ट्रेन योर माइंड, आवर माइंड्स। कुछ लोग सुबह डेली सेशंस में आ रहे हैं। देन एंथुजियाज्म, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं मनी माइंडसेट पे काम करता हूं, आप आओगे मेरे पास? मैं ट्रेनर हूं, मैं मनी माइंडसेट पे काम करता हूं, 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज करूं। आर यू टॉकिंग टू योर पीपल लाइक दिस? जब वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। सो बी वेरी एंथुजियास्टिक। अगर आप इसके सीरीज को देखते चले तो जो आप स्टेप्स कर चुके हो उसके बाद ये आसान हो जाए। व्हेन यू आर डेफिनेट कि आपको क्या अचीव करना है, व्हेन यू आर रेडी आपको क्या सर्विस देनी है, व्हेन यू आर एक्स्ट्रा गोइंग एक्स्ट्रा माइल, फिर इंथुजियाज्म की कोई कमी है क्या जब आपके सामने आपका गोल है? बट वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, अगर अगर हमारे नेचर में नहीं है। देन टेकिंग पर्सनल इनिशिएटिव। सो यू नो, आपको वेट नहीं करना है कि कोई बोले कि ये कर दो। इफ इट इज योर सक्सेस, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, यू कैन चेंज ओनली 1% इन दिस वर्ल्ड, ओनली 1%। जो आदमी आपको सुबह शीशे में दिखाई देता है, उसके अलावा आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो टेकिंग पर्सनल इनिशिएटिव, taking the ownership and taking the responsibility, he has emphasized much on it and he says कि जैसे जैसे आप पर्सनल इनिशिएटिव लेते हैं और जैसे जैसे आप उस पर एक्शन करते हैं, वैसे वैसे आपका फेथ और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है। देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मजबूत एक्सरसाइज है जो रोज करने को कही जाती है।
visualization. So Napoleon has also said that creative imagination. So we have taken the possession of our mind and now we are directing it to जो हमारा सक्सेस है उसको अटेन करने के लिए वो इमेजिनेशन करें. जैसे हम बोलते हैं कि आप 3 साल बाद जहां होगे उस लाइफ को इमेजिन करो, विजुलाइज करो. उस इमेजिनेशन में सपोज मैं सोचता हूं कि मैं 3 साल बाद एक मेरी बहुत बड़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी हो. अब मैं उस कंपनी को जब विजुलाइज करता हूं तो मुझे टीम दिखाई देती है, मुझे एक ऑफिस दिखाई देता है. तो मुझे आइडिया लग जाता है कि मुझे यहां से वहां जाने के लिए बीच के स्टेप्स क्या करने होंगे. टीम तो हायर करनी पड़ेगी ना, ऑफिस तो लेना पड़ेगा. फिर आप 2-3 चीजों को कंबाइन करके क्रिएटिव इमेजिनेशन आप अपने आइडियाज बना सकते हैं. लेकिन जब आप अपने माइंड को ये काम करने देंगे तब कि जाओ इमेजिन करके लाओ कुछ चीजें. हमारी और अभिषेक धवन की एक दिन बात हो रही थी. कोई भी चीज इमेजिनेशन में कब आई? जब कहीं ना कहीं देखी या सुनी थी. रैंडम इमेजिनेशन बहुत रेयर किसी साइंटिस्ट वगैरह को आई होंगी जो हाइपोथेसिस करते होंगे. जी बिल्कुल. एनी टिप्स टू करते हैं बात धनुवती सर. अब होम डिलीवरी का कंसेप्ट चल रहा था फूड प्लाजाज में. उसको देखा एक फार्मेसी वाले ने, उसने शुरू कर दिया. तो समटाइम्स 2-3 आइडियाज मिलके आपके नए आइडिया निकल के आते हैं. बट यू विल हैव टू वर्क ऑन दोज आइडियाज. वो कब होगा? जब आप वो अप्लाइड फेथ पे काम कर रहे होंगे. तो दीज वी टीच कि आप विजुलाइज करो, देखो कैसे हो आप सक्सेसफुल होने के बाद. तो यहाँ ये लॉ ऑफ सक्सेस का भी पार्ट है. देन लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी, इसको भी इन्होंने स्ट्रेस अपॉन किया है. एडवर्स सिचुएशन में कुछ सीखें. अब 2 घटनाएं मुझे अच्छे से याद है. एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की थी और मेरे 2 दोस्त उसको संभाल रहे थे और मुझे लगा इससे काफी अच्छी रिटर्न आएगी. मैं पूरी लाइफ उससे प्लान करने लगा था अपने आगे की और उसमें सडन लॉस हुआ था. ठीक ठाक. उसके बाद मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि जो भी काम करूंगा वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने चार्ज को लेकर करूँ. और उस वजह से हम 3-4 साल रुके रहे जब तक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं गई जिसमें होल सोल मैं इन्वॉल्व होके कर सकता था विथ माय जॉब. तो वो एक लर्निंग थी, एडवर्सिटी से सीखी मैंने. सेकंड थी लॉकडाउन. अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं जॉब के साथ कभी भी स्टॉक मार्केट को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाता कि मैं एक दिन जॉब छोड़ूं. हेल्थ सेक्टर के बहुत सारे लोगों को एडवर्सिटी में ठीक है वो एडवर्सिटी तो आनी थी, हम उसको इनवाइट नहीं कर रहे, बट आ गई तो लोगों ने उसके थ्रू सक्सेस अचीव की. मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने जस्ट जॉब छोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट किया था घरों में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का. क्रिटिकल केयर, नर्सेज हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब प्रोवाइड करते हैं. और वो 1 साल में ही हैज बिकम लाइक एनीथिंग. बिकॉज इफ ही स्टार्ट, वो नया नया शुरू किया था, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने ग्रैब कर लिया, उसको एक्सपेंड कर दिया कोरोना के हिसाब से. नेपोलियन हिल का अपना खुद का एक किस्सा है कि वो एडवर्सिटी से कैसे सीखा था उन्होंने. देन जो हम हमेशा कहते हैं व्हाट यू फोकस ऑन, एक्यूरेट थिंकिंग उन्होंने नाम दिया इस मास्टर की का. तो व्हाट वी फोकस ऑन ग्रोज इन लाइफ, उस प्रिंसिपल को बताता है. तो यू हैव टू टेक पोजेशन ऑफ योर माइंड एंड ऑलवेज थिंक जो एक्यूरेट फैक्ट्स बेस्ड है. आपकी इमेजिनेशन बेस्ड निगेटिव कोई ख्याल आ रहा है, फियर एंड वरीज आ रहे हैं, तो वो आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करना है. एंड थिंक व्हाट यू वांट इन लाइफ, फैक्ट्स बेस्ड. अगर सोचना ही है तो ये क्यों सोचे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. ये सोच लेते हैं कि अगर हो गया तो क्या होगा. इतना तो हम कह सकते हैं अपने माइंड को. एंड कमिंग टू द लास्ट, कॉस्मिक हैबिट में ही हैज टॉक्ड purely about thought become things, and you have to create a habit of continuously thinking about your goal and what you can do for it. Positive
थॉट्स, कंट्रोल योर माइंड, और वही थॉट्स को आने दीजिए जो आपको आपके गोल से मिला सकती है। अगर कोई ऐसी थॉट है जो आपके और आपके गोल में बाधा बनती है, तो उस थॉट को हटाना सीखने की प्रैक्टिस करने की। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को मैंने अभी, इनमें से कुछ तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वैसे भी कर रहे थे, बट हाँ, कुछ चीजें जैसे मास्टरमाइंडिंग सीरियसली करना और एक्स्ट्रा माइल और ढंग से समझ के उसको करना शुरू किया, प्लान करके, जो अभी तक हैबिचुअली यूं ही कर दे रहे थे। 3-4 चीजों को ही सीखने से मेरे अंदर लगभग 30 to 40% की ग्रोथ आई है पिछले 1 महीने में। सो विद दिस, जो टॉपिक था वो सेशन हमारा समाप्त हुआ। इनमें से जो भी कीज आपको अच्छी लगती हैं उनको ऑप्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। नेपोलियन हिल को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा सेशन आपको क्यूरियस बता सकता है। पूरा सेशन इतने टाइम का नहीं है कि उसका सब कुछ इसमें बताया जा सके, फिर भी जो भी मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक्सप्लोर कीजिए और पढ़िए उसको। और भारत सर ने एक क्वेश्चन पूछा था। भारत सर, क्या क्वेश्चन था आपका? एनी टिप्स टू वर्क ऑन इट? किस टॉपिक पे बात की थी अपन ने? संजीव जी, वो मीट का क्वेश्चन था, मीट नानावटी। He wanted to know about this going extra mile and creative imagination. अच्छा, क्रिएटिव आइडियाज। जब आप अपने दिमाग को काम पे लगाएंगे तो वो आइडियाज लाएगा। अब उसके लिए आप मास्टरमाइंड सॉल्यूशन कैसे यूज कर सकते हैं? आपके फ्रेंड्स, टीम, सक्सेसफुल पीपल हैं तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब है। अभिषेक धवन बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अगर ही इज इन दिस मीटिंग राइट नाउ। इन्होंने बहुत कुछ बुक्स और यूट्यूब के वीडियो से सीख के अपने उसमें इंप्लीमेंट किया, उससे नए आइडियाज जनरेट हुए। तो जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं वो ये है कि जो आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, उस जगह को, उस पॉइंट को इमेजिन करिए। सी व्हाट यू कैन थिंक अराउंड, लुक अराउंड। क्या टच कर रहे हैं आप, क्या फील कर रहे हैं उस समय, कैसे दिख रहे हैं आप, आपका आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, और वो जो सीन आपके सामने क्रिएट होंगे उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे बीच के रास्ते कैसे पूरे। आइडियाज आते हैं, मैं आपको भेज नहीं सकता, तो ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। सी मास्टरमाइंड, अगर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए तो वो बना ही इसलिए है। अब उसका यूज कैसे हो रहा है, हमारी जो कंपनीज है वो कैसे काम करती है, मास्टरमाइंडिंग पे तो काम करती है। मुकेश अंबानी ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखा हुआ है अपनी टीम में। उनके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, वो सारे मिलते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम, एक गोल को अचीव करने के लिए कौन किसके साथ मिलकर कैसे काम करेगा वो डिसाइड करते हैं। सारा दिमाग एक अकेले आदमी का नहीं चलता वहां पे। एंड फिर सारे प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं वहां पे, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं। यस, यू ट्राई नोटिंग योर सराउंडिंग्स एंड यू टेल पीपल कि आपका ये गोल है, आपको मिल जाएंगे हेल्प करने वाले। निहारिका आज यहाँ पर नहीं है। निहारिका ने लास्ट टाइम सक्सेस प्रिंसिपल की जब बात की थी तो शी टोल्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जैक कैनफील्ड बताते हैं, आस्क पीपल आई वांट दिस, मिलेगा। और उन्होंने लाइव करके दिखाया था। भारत सर आप वहां थे, उन्होंने एक चीज के सॉल्यूशन पूछा, लोग देने लगे। So from my side, the session here comes to an end. Any question, answer, we are open for that. Hi Sanjeev, can you explain a bit more about applied faith? इसका मतलब with 1 or 2 practical examples कि कैसे इसको यूज किया जाए. I found it very interesting. Applied faith के लिए हम लोग जब you might be knowing about law of attraction, तो हम अपने Yes, इनर सिस्टम पे जो वर्क करते हैं वो तो है। अब फिजिकल लेवल पे क्या करना है, वो फेथ को मेंटेन करने के लिए वो एक्शन को करते रहना है। सो बिफोर यू आर एंटरिंग इनटू समथिंग, मैं जो करता हूं, मैं उसकी एक रिस्क एवेल्युएट कर लेता हूं, चाहे वो मेरे टाइम के हिसाब से हो या मनी के रिस्पेक्ट हो, और मैं एटलीस्ट उतने तक उसको खींचता हूं या करता हूं या रिपीट करता हूं
तभी तो मुझे पता चलेगा ये वर्क कर रहा है कि नहीं, और वो वर्क करने लगता है। और जब वो वर्क करने लगता है तो आपका फेथ बढ़ने लगता है। Got it. इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग। Thank you. थैंक यू अंकुर। Okay. All right. थैंक यू भारती, थैंक यू एवरीबॉडी। So it was quite a nice, informative section. Thank you very much, Sanjeev Mishra. So let's give a clap to Mr. Sanjeev Mishra for this amazing session. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I would like to take your 2 minutes more to announce our next workshop, which is on digital marketing. We have the trainer as well here, Mr. Ongir Bhattacharya. Ongir, would you like to speak for 2 minutes about your upcoming workshop, which is on 19th? Yes, sure. So, hi everyone. Hi. So this digital marketing workshop will focus on how you can, create your own product online, just through online methods and promote it and earn an income from it. Also, how you can use other people's products and promote them and earn an income out of it. And also the latest and greatest of the digital marketing strategies that we use currently in companies. So I'm really looking forward to the workshop and hope to see a lot of you there. We'll be sharing a lot of cutting edge information on digital marketing. So yeah, that being said, that'll be great. And if you have any questions about the workshop, please do let us know and we'll get back to you. So we should not forget that affiliate industry is one of the biggest industries in the world, and just by promoting other people's product, you can earn from 50% to 75% of the commission of the product they are offering. And initially, Rapid Mile, when we started almost 17 years back, we were one of the pioneers to start in India, and the major earning for us was to be an affiliate for a lot of products we used to promote. So it's actually a very big industry, and as thanks to Corona uh, and the COVID situation, that all of us are at home, we have a lot of spare time to promote. So why not to earn an additional income? So it's a very good skill to learn. So utilize this time to learn something new about digital marketing and to promote products. Thank you. Thank you very much, everyone, Thank you very for much. being there. Yeah, enjoyed Have a nice being with you. Have a nice time. Bye-bye. थैंक यू, bye bye, see you next week. Thank Thank you, everyone. Thanks for the wonderful